Good morning, students. As we were reading Unit 6, Sam and the Secret Call. Sam, the character of this story. Sam and his parents have been coming to the same island every summer. They always stay in the same small house which has a fantastic view of the glittering sea. So, when the first evening back on the island, Sam and his family decide to go out the favorite island restaurant, Ocean. What was the name of island restaurant? It was Ocean. So, while they were eating dinner, then they met to the head waiter whose name was Dominic. So Dominic tells them about his cousins Armando, and he also says that Armando has a boat and he can take Sam swimming with the dolphins. Why? Because Armando has a secret call that brings the dolphins to him. So Sam was very excited to hear this. Sam and his family was agree for this, and next morning Sam go with Armando. Okay, so when they reach at their destination, okay, then Armando and Sam dragged the heavy anchor to the side of the boat to heave it into the water. And then Armando started to whistling to call the dolphins. Dolphins were in 12 and they all are come towards the boat. So when they saw dolphins, then Armando threw the fish from the boat for dolphins. Then dolphins were leaping and catching the fish. Here Sam begged to the Armando, please, may I swim with them? Then Armando gave permission. Sure, jump right in. Laughed Armando, and so Sam dove into the water. और तभी जो अर्मेंडो होता है वो लव करने लगता है और सैम जो होता है वो वाटर में डोव कर जाता है. A few dolphins leaped through the air and then dived just below the surface while Sam swam alongside. और जो few dolphins होती हैं वो एयर में लीप करने लगती हैं. Then dived just below the surface while Sam swam alongside. जब सैम स्विमिंग कर रहा था तो वो भी डाइव करने लगती हैं. द अदर डॉल्फिन्स स्वैम क्लोज बाय एज इफ ट्राइंग टू कैच देम. और कुछ अदर डॉल्फिन्स जो थी वो सैम के क्लोज ही स्विमिंग कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो ट्राई कर रही थी सैम को कैच करने की. इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड. सैम के लिए बहुत ही अमेजिंग गेम थी जिसको पहले कभी सैम ने नहीं प्लेड किया था. He swam and played as the dolphins for a long time until they finally heard Armando's voice from the boat. वो तब तक स्वैम करता है और तब तक डॉल्फिन्स के साथ प्ले करता है जब तक अर्मांडो उसको कॉल नहीं करता. Sam, you must come aboard now. We must go back. तभी अर्मांडो कहता है कि अब तुम्हें आ जाना चाहिए बोट के अंदर क्योंकि हमें अब जाना चाहिए. Sam climbed aboard as Armando started the engine and turned the boat around. और तभी अर्मांडो जो होता है वो अपने इंजन को स्टार्ट कर देता है और सैम जो है वो बोट पर चला जाता है. You have a good time, yes, asked Armando. Then Armando asked to the Sam. It was a good time for him. Then he said, yes, I have a good time. The best time of my life, replied Sam. Please teach me the whistle to call them. I promise I won't tell anyone else.
Then Sam replied to the Armando, it was the best time of his life. He never ever spent his life, it's better time in his life. Please teach me the whistle to call them. सैम कहता है अर्मेंडो से, प्लीज़ मुझे विस्लिंग सिखा दो ताकि मैं भी डॉल्फिन्स को कॉल कर सकूं. आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल यू एनी वन एल्स. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और भी कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा. अर्मेंडो थॉट फॉर अ मोमेंट. सो अर्मेंडो वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. So for a moment he was thinking. Then he sat on the deck and showed Sam the exact position, the thumb. और तभी वो सैम को थंब की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, where he has to keep his thumb to whistle. वो बताता है कि कहाँ पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए थंब की, ताकि उसके माउथ से विस्लिंग की साउंड आए. So the thumb should be in and the exact pressure them Sam should through them with his lips. The exact pressure Sam should blow through them with his lips. It means Armando knew that for the sound to come out and Sam must not blow too soft or blow too hard. So Armando taught Sam the correct amount of force he must use. यहाँ अर्मेंडो उसको बताता है कि उसको कितना फोर्स लगाना है विस्लिंग की साउंड करने के लिए. आफ्टर हाफ एन आवर एंड मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थम्स एंड आउट केम अ परफेक्ट विसल. हाफ एन आवर के बाद फाइनली काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद जो सैम होता है वो परफेक्ट विस्लिंग करता है. ब्रिलियंट, नाउ यू कैन डू इट, सेड अर्मेंडो. अर्मेंडो कहता है, यस इट वॉज ब्रिलियंट, अब तुम इसको कर सकते हो. बाय नाउ द विंड वॉज स्ट्रॉन्गर, द सी वॉज चॉपी एंड द लिटिल बोट वॉज स्विंग इन द वाटर. चॉपी इट मीन्स रफ विद मेनी वेव्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स. सो स्ट्रॉन्ग विंड्स वॉज ब्लोइंग and for this reason the boat was swaying in the water. और बोट जो था वो स्विंग करने लगता है वाटर के अंदर. A large wave crashed on over the side of the boat, throwing Armando on the floor and where he lay without moving. Okay, और तभी जो वो लार्ज वेव होती है, क्योंकि क्या था, सी में स्टॉर्म आ गए थे. ओके, काफ़ी तेज की हवा चलने के कारण सी में, समुद्र में तूफान आ गए थे. और सी में तूफान आ जाने के कारण, स्टॉर्म आ जाने के कारण जो लार्ज वेव होती है वो क्रैश करती है और अर्मेंडो को पीछे की ओर गिरा देती है. देन अर्मेंडो ऑन द फ्लोर वेयर ही ले विदाउट मूविंग. बिना मूविंग किया अर्मेंडो जो होता है वो बोट के फ्लोर पर गिर जाता है, लेट जाता है, ले डाउन हो जाता है. Sam tried to revive him, but it did not work. Revive, it means bring him back to consciousness. Because this time Armando was unconscious when he was falling down on the floor. जब वो गिर जाता है फ्लोर पर तब अर्मेंडो अनकॉन्शियस हो जाता है. एंड सैम जो है वो काफ़ी ट्राई करता है अर्मेंडो को कॉन्शियस में लाने के लिए, बट इट डिड नॉट वर्क. लेकिन वो वर्क नहीं करता. सैम लुक्ड अराउंड नर्वसली. वो चारों ओर नर्वसली देखने लगता है. वॉट ही विल डू नाउ. ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वेयर द ब्लू वाटर्स ऑफ द सी. अपने चारों ओर वो केवल ब्लू वाटर के वेव्स को ही देख पा रहा था. ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर. ही लुक्ड एट अर्मेंडो अगेन. इससे पहले उसने कभी भी लोनली फील नहीं किया था. सो ही लुक्ड एट अर्मेंडो अगेन. फिर से वो अर्मेंडो को देखता है. वेयर कैन आई गेट हेल्प, वंडर्ड
सैम बहुत ही वॉन्डर था, बहुत ही आश्चर्यचकित था, वो क्या करे, किससे हेल्प ले सकता है। He had an idea. He put his thumbs in his mouth and in the correct position and blew through the gap between them. The whistle came out long and low, cutting through the noise of the rain and the wind. Again and again he whistled. तभी सैम को एक आइडिया आया और उसने अपने थंब को अपने माउथ के अंदर पुट किया और एक करेक्ट पोजीशन में रखते हुए उसने ब्लू करना स्टार्ट किया। तभी उसके माउथ से विस्लिंग की साउंड आती है और जैसे ही विस्लिंग की साउंड होती है, व्हाट हैपेंड विद देम, इट वाज मिरेकल। ओके, सो व्हेन ही विसल्ड, देन ही हर्ड अ नॉइज एंड देयर दे वर 30 or 40 of them. Who was that? Who was those? Those were dolphins. Who was coming in 30 and 40? ठीक है, वो 30 और 40 की संख्या में आ रहे थे। वो कौन थे? They were dolphins. Swimming through the waves towards him, they surrounded the boat and began to push it along using their heads. और वो सारे के सारे डॉल्फिन्स जो थे वो बोट के चारों ओर हो गए, चारों ओर फैल गए और उन्होंने बोट को पुश करने, अपने हेड्स के थ्रू पुश करने की कोशिश की। सैम वॉज सो रिलीव दैट ही वॉन्टेड टू क्राई। सैम जो था वो बहुत ही डर गया था। ही वॉज फीलिंग वेरी फ्राइटेंड एंड व्हेन ही सॉ द डॉल्फिन्स वर हेल्पिंग हिज, देन ही वॉन्टेड टू क्राई। तभी वो रोना चाहता था। The dolphins pushed the little boat for many hours until the storm had passed and the sky was clear. डॉल्फिन्स ने तब तक लिटिल बोट को पुश करती रही जब तक कि वो स्टॉर्म समाप्त नहीं हो गई थी, ख़त्म नहीं हो गई थी, एंड द स्काई वॉज नॉट क्लियर, तब तक जब तक कि वो स्काई क्लियर नहीं हो गए थे। अपॉन द डेक सैम हैड ट्राइड टू मेक अरमैंडो एज अ कंफर्टेबल एज पॉसिबल। डेक पर पड़े अरमैंडो को सैम बार बार कॉन्शियस करना चाह रहा था, बट इट वॉज नॉट कंफर्टेबल। सडनली अरमैंडो ग्राउंड एंड सेटअप। तभी सडनली क्या होता है, अरमैंडो कॉन्शियस हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। आओ माई हेड, व्हाट हैपेंड, ही आस्क्ड। वो पूछता है क्या हुआ मेरे सिर को। यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रेस्ड ऑन द बोट एंड सो आई विसल्ड फॉर द डॉल्फिन्स एंड दे सेव्ड अस, सेड सैम ब्रीथलेसली। बिना सांस लिए हुए उसने बताया सैम को, अरमैंडो को, यू नॉक्ड योर हेड व्हेन अ वेव क्रेस्ट, जैसे ही वेव ने क्रैश किया तुम्हें, तुम्हारा हेड जो था वो टकरा गया और तुम डेक पर गिर पड़े। तभी मैंने विसल्ड किया और डॉल्फिन्स को बुलाया अपने हेल्प के लिए, एंड दे सेव्ड अस, और उन्होंने हमारी लाइफ को बचाया। इनक्रेडिबल, अरमैंडो सेड, इन ऑल माई ईयर्स आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस। तभी अरमैंडो कहता है इनक्रेडिबल, मैंने अपने ईयर्स में, अपने पूरे ईयर्स में, पूरे साल में ऐसा कभी नहीं देखा। इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसल। ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने तुम्हें विस्लिंग सिखा दी। यस, अरमैंडो लीन डाउन टू द डॉल्फिन्स एंड थैंक यू माई फ्रेंड्स, आई फिक्स द इंजन वेल, नाउ यू कैन रेस्ट। तभी अरमैंडो जो है वो डॉल्फिन्स को थैंक यू बोलता है, एंड देन ही फिक्स्ड द इंजन एंड ही सेड टू द डॉल्फिन्स, नाउ यू कैन टेक रेस्ट। द डॉल्फिन्स स्टॉप्ड पुशिंग, स्लोली टर्न्ड अराउंड एंड देन joyfully leaped through the waves back out to sea. डॉल्फिन्स पुशिंग करना स्टॉप कर देती है एंड स्लोली टर्न अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप थ्रू द वेव्स बैक आउट टू द सी। और जॉयफुली वो खुशी खुशी जो है वो सारे के सारे लिपिंग करते हुए वेब्स के थ्रू बैक सी के अंदर चले जाते हैं। एज यू कैन सी दे वर इन 30 and 40। ओके, वो 30 और 40 के नंबर्स में थे, संख्या में थे, एंड दे ऑल वर पुशिंग विद देयर हेड्स टू द बोट एज दे कैन सेव द लाइफ ऑफ अरमैंडो एंड सैम। थैंक यू माई फ्रेंड्स, यू सेव माई लाइफ, येल्ड संगीता वेविंग एट देम।
और तभी वो वेविंग करते हुए, हाथ हिलाते हुए बोलते हैं, थैंक यू माई फ्रेंड्स, यू सेव्ड माई लाइफ, तुम लोगों ने हमारी जान बचाई। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ, वी विल बी बैक वेरी सून नाउ, सेड अरमैंडो एट द व्हील, एंड वेल यंग सैम व्हाट अ डे यू हैड ई। अब हम बहुत जल्दी ही वापस जाएंगे, और मैंडो ने ऐसा कहा, एंड वेल यंग सैम व्हाट अ डे यू हैड, और तभी वो अरमैंडो जो है सैम से पूछता है कि आज का दिन कैसा था तुम्हारा। बट सैम वॉजंट लिसनिंग, लेकिन सैम को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन्स फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर। वो तो केवल डॉल्फिन्स को देख रहा था कि किस तरह से वो बर्ड की तरफ फ्लाइंग कर रही हैं, ओके, उस गोल्डन वाटर में, एंड इट्स मजेस्टिक फिन ग्लिंटिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन। ग्लिंटिंग इट मीन्स स्पार्किंग, ओके, ग्लिंटिंग इट मीन्स स्पार्कलिंग। सो वो देख रहा था कि किस तरह से जो डॉल्फिन्स है वो जस्ट लाइक एज अ बर्ड की तरह जो है वो गोल्डन वाटर में फ्लाई करती हुई जा रही है। इट मजेस्टिक फिन, उसकी जो मजेस्टिक फिन थी वो स्पार्कलिंग कर रही थी सन के रेज के कारण, ओके। सो अरमैंडोज इंग्लिश इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज हिज होम लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश। सो यहाँ पे जो अरमैंडो की इंग्लिश थी वो बहुत ही बेटर नहीं थी, ओके, इट वॉज डिफरेंट। वाई? बिकॉज हिज होम लैंग्वेज वॉज नॉट इंग्लिश, क्योंकि उसकी जो होम लैंग्वेज थी वो इंग्लिश नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव यू सीन हाउ द एनिमल्स सेव our life when we only take care of them, when we love to them, then they always be loyal for us. So we never ever hurt to any animals, and we should love to all the animals, and we should also take care of all the animals. So it was our chapter, students, which we have done. I hope you must have enjoyed with this chapter, Sam and the Secret Call. So what was the secret call? The secret call was the whistling sound which Armando used to call the dolphins whenever he go to the sea. And at last, Sam also learned to whistling sound, and it was very fantastic day, fantastic time for Sam, which he has spent with dolphins. Once again, you will read this chapter.